He's owned by Nikki in the house. I think Okay. he's like Nikki's pet. वक्त आने पर एजाज और पवित्रा ही एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे का गला काटने के लिए खड़े होंगे. Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I am Rashita Sahani and today we have with us a very special guest back from the Bigg Boss 14 house. After a 1 month long power-packed stint in the BB house, today we have with us Nishant Singh Malkani. Hi Nishant, how are you doing? I'm all right. How are you doing? I'm doing good too. So, firstly, tell me, Nishant, that audience and in fact your fans were very shocked to see Yeah. your eviction and the way it happened. Of course, you were not evicted by the audience. How did you Yeah. feel? I felt it was a very unfair process, the way they evicted me. Yeah. Audience के votes के हिसाब से I think I had the second highest or something votes among the red zone contestants and there was no way I should have been out. But घर वालों को जब ये मौका मिला to evict one person, so they obviously chose me because physically I'm stronger than all of them. I'm the most righteous person in the house. मतलब I don't stoop down to their levels just for 5 minutes of fame. And I am the one who used to stand up against Ejaz, Pavitra, Nikki, Jan, Rahul. Every time they did something wrong. So I think उनको ये हो गया था कि अगर ये मौका मिला है, तो let's remove him as soon as possible. Shardul was obviously a little insecure of me. Starting से उसने बोल रखा था, ये पहले nomination में भी उसने कहा था कि I think you're very strong, so I would like to nominate you. तो उसका reason भी मैं समझता हूँ. अभिनव ने जो मुझे किया, I was not expecting it, but then if I think about it, he's too sensible a guy. So maybe he wanted to save Kavita. Rubina, Jasmine are his like closest people in the house in their own respect. But I think he wanted to save Kavita because I think one, they are old friends. They stay in the same building, they're neighbors and all that. But the main thing is, I think उसको लगा होगा कि Kavita is too new. उसको एक ही हफ्ता मिला है and she's in the red zone. So maybe she deserves a chance, a vote to help her stay in the house. I think ये reason था उसका मुझे nominate करने. Okay. And in the house, you shared a very genuine bond with Jan. But then, of course, in the end, whatever we saw that he was not trusting you. What happened? You recently said that he is not using his brains properly. And do you think he's being kind of dominated by Nikki? Not kind of. He's owned by Nikki in the house, I think. He's like Nikki's pet. He's blindly infatuated, I believe. Because of which his real self has come out. मतलब उसके morals, उसकी values हमने सबने देख लिए. जिसको भाई बोलता था उसका नहीं हो पाया, उसको धोखा दिया निकी के कहने पे. जिस माँ के बारे में वो दिन रात गुनगाता है, उस माँ की कसमें उसने मेरे सामने झूठी खाई है कि मैं अब ये चीजें अब दोबारा नहीं करूंगा, मैं निकी के बातों में नहीं आऊंगा, मैं I won't follow her around like a puppy dog and get myself insulted. तो ये सब चीजें नोटिस करने के बाद मुझे लगता है कि जान जैसा कैरेक्टरलेस स्पाइनलेस मैन, मतलब मैन आल्सो इज अ वेरी बिग टर्म टू गिव टू अ पर्सन लाइक दैट, बट उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा. ही इज एन एम्प्टी शेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जिसमें जिसको जैसा यूज करना है बस दो अच्छी बातें बोल दो और चाबी भर दो उसके अंदर और वो गधों की तरह जाके वो कराएगा. he's a coward, he is a cheat and दोस्ती के नाम पे धब्बा. That's the term I would like to give him. Okay. And Nishant, inside the house, when your entry was made, there was this term that angry young man. But maybe even if you showed that avatar of yours inside the house, it wasn't shown as much on TV. What do you think? Was there anything, the footage was not shown, or were you not just in that zone in the house? Honestly, पहला दूसरा हफ्ता मैं काफी slow था to adjust myself in this negative environment. See, मैंने कभी भी इस तरह के लोगों के साथ डील नहीं किया. मैं पहली बार एक environment में रह रहा था जहाँ पर इतने घटिया cheap लोग मुझे नजर के मेरे सामने आ रहे थे and I was taking time to understand कि मुझे लग रहा है कि actually में घटिया लोग हूँ. तो मैंने उनको observe किया. Ejaz is a complete psycho. He's screwed in the head. मतलब वो इतना बड़ा साइको है कि उसने मुझे लिटरली एक बार आके बोला कि मुझे ना विजन आता है ऐसा कि मैं बिग बॉस के घर में किसी के बेड पे चढ़ के रात को सोते वक्त चाकू लेके गला काट दूं. ऐसे मुझे इमेजिनेशंस आती है. निशान मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. मतलब उस वक्त मैंने मजाक में ली वो बात. मुझे लगा शायद कैमरा को ड्रामा दिखा रहा है कुछ. बट नाउ आई रियलाइज ही इज एक्चुअली स्क्रूड इन द हेड. उसका स्क्रू ढीला है. वो क्यों है मुझे नहीं पता बट ही नीड्स मेडिकल हेल्प
very soon. He is a very dangerous, obsessive human being जो किसी भी हद तक किसी भी नीच हरकत वो करने को रेडी हो जाएगा अगर उसको लगता है कि एक कदम में और ट्रॉफी की जगह पहुंच जाऊंगा, तो ट्रॉफी के पास पहुंच जाऊंगा. पवित्रा जैसी चीप हरकतें करने वाली फीमेल के साथ मैंने पहली बार डील किया, जो मतलब मौका मिले और जैसे चॉल टाइप लेडीज होती है ना, जो चीख चिल्लाट गाली गलौज गंद, मतलब पूरा माँ बहन की गालियां टाइप्स, वैसी घटिया बातें मैंने पहली बार देखा. तो इस तरह के लोगों को देखने के लिए मुझे समझने के लिए टाइम लग गया, पहला हफ्ता तो, जिसमें एक इम्प्रेशन बन गया कि मैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ या बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आई डिडंट वांट टू जज एनीबॉडी क्विकली. मैं हैरानी में ही मेरे हफ्ते डेढ़ हफ्ता निकल गया स्टार्टिंग का. बट सेकेंड वीक खत्म होने के साथ ही मेरा अंगने में टास्क स्टार्ट हुआ. उसके बाद से ही एवरी टास्क आई वन, आई हैड अ रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी इन द हाउस. मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे किसके साथ कितनी दोस्ती बनानी है, नहीं बनानी है, जिसका रिजल्ट ये था कि कैप्टनसी के टास्क में एवरीबॉडी वांटेड मी टू बी द कैप्टन, द फर्स्ट पर्सन इन द हाउस टू बी अ कैप्टन. एवरीबॉडी वांटेड मी, कंसेंसस नाउ था. सो दैट वाज एन अचीवमेंट. एंड फोर्थ वीक अगेन आई वाज गोइंग स्ट्रांग, जब तक एक बहुत ही अनफेयर प्रोसीजर से अभिनव की जगह एजाज कैप्टन बना, जबकि गेम में अभिनव बहुत सक्रिय बना, और एजाज ने अपनी वही पॉलिटिक्स खेली, 4 नेगेटिव लोगों को बाहर निकाला जो उसको सपोर्ट की जरूरत थी, जिन लोगों की, टू बी द कैप्टन, और 4 फेयर लोगों को जो नॉमिनेट भी नहीं थे, जो बिल्कुल सही खेल रहे थे, अपना सही इतना तमीज से खेल रहे थे, उन 4 को उसने अंदर डाल दिया. तो वहां से मुझे लगता है मेरे साथ जो अनफेयर प्रोसेस स्टार्ट हुई, और उसका एंड भी ये था कि मेरी एविक्शन भी हाउसमेट्स के वोट्स पे हुई, ऑडियंस वोट्स पे नहीं. I don't agree with this eviction, but that's how it is. I think it's unfair. It's disappointing. Okay. And do you think this all love and romantic angle that's shown inside the house, it's just because of the TRP, like Ejaz and Pavitra? Even you talked about them. What is that all about? Ejaz and Pavitra, like I said, can do anything, go to any limit, just for 5 minutes of fame. They are such insecure, empty people. तो होता ये है कि उनको स्टार्टिंग में उनके झगड़ों को 1-2 बार लोगों ने पसंद कर लिया था, जो एक उनके ऑर्गेनिक झगड़े हुए थे स्टार्टिंग में, तो उनको समझ में आ गया कि हमारा और कुछ नहीं, आपस में झगड़े, हमारी आपस की पेयरिंग लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है. उनको हिंट आ गया वहां से. उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्होंने जबरदस्ती के झगड़े बनाने शुरू किए, उन्होंने जबरदस्ती का लव एंगल स्टार्ट किया. एवरीथिंग यू सी बिटवीन दीज टू पीपल इज फेक, इट्स फॉर द कैमरा. वो सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए अपना ये प्यार का एंगल डाल रहे हैं. कोई किसी से प्यार नहीं करता. वक्त आने पर एजाज और पवित्रा ही एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे का गला काटने के लिए खड़े होंगे. तो दैट्स द काइंड ऑफ नेचर दीस पीपल हैव. दे आर, वो खुद के नहीं है, किसी और के क्या होंगे, मतलब वो किसी के नहीं. Okay. And lastly, tell me, Nishant, if given a chance to get back inside the house and show everyone what you're worth of, will you go? Of course, if I get a chance, I will go, and I will go with vengeance. I will go only for one purpose now, to teach lessons to these people, you know, जिनको लगता है कि एक इंसान की शराफत, एक अच्छाई, एक डिसेंसी, एक इनोसेंस वीकनेस है. उनको ये सिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ होती है. और तुम जो घटिया हरकतें कर रहे हो, तुम्हारा जो घटियापन तुम दिखा रहे हो दुनिया को, वो है तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस, बिकॉज़ यू आर अ कावर्ड. और ये मैं बताने के लिए, उनकी लाइफ हेल बनाने के लिए जाऊंगा अगर मैं गया तो. Okay. And I just have, Nishant, 5 like very quick rapid fire, and I just have like 5 terms, so we'll just quickly play it. Who did you find the most clever person inside the house? Rubina is the most clever person, I think, in the house. Yeah. Okay. Dumb? Dumb is John, definitely. Okay. He's an idiot of the first order. Okay. The biggest player? Biggest player? कोई भी, देखो, द बिगेस्ट प्लेयर आपको तब होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन है, मतलब वो इतना सही खेल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि वो खेल रहा है. यहाँ सबकी सच्चाई ना बहुत सामने से दिख रही है. एजाज की पॉलिटिक्स, एजाज की सारी चीजें दिख रही हैं, पवित्रा का नेचर साफ, वो क्या करती है टेंशन के लिए, निकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. प्लेयर तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे. आई थिंक दे आर ऑल जस्ट बीइंग देमसेल्व्स. Okay. And who's the most calm person inside the house? Abhinav. After me, definitely it's Abhinav. He's the most calm human being. उसको गुस्सा आता ही नहीं, तो आई थिंक उसकी भी जो शराफत है वो उसको बहुत भारी पड़ेगी आगे जाके. Okay. Okay, that is it. Thank you so much, Nishant. It was great chatting with you. Looking forward to seeing you again inside the house. Pleasure. Take care.